Okay जी. Do you hear me clearly? Do you hear me, all of you? Yes, sir. Okay, Saif, how are you? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं सर। मैं ठीक, good. Okay, सैफ, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, कहाँ तक पहुँचे थे, कुछ याद है? सर ये आपने लास्ट स्लाइड में वो पीसीआर और वो बताया था जीसी कंटेंट। Hmm. So in the previous lecture, we discussed the genotypic characteristics for the identification, और उसमें हमने डीएनए प्रॉप्स, इसके साथ साथ हमने what is wrong with it? Yes, हमने डीएनए प्रॉप्स, पीसीआर, सिंगल स्ट्रैंड, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि फिश क्या होता है, हाउ अ डीएनए प्रॉब कैन बी लेबल्ड विद द radioisotope or with the fluorescent isotope, and along with it we discussed about the PCR for the specific DNA sequencing, and there I told you how can we perform the PCR और किस तरह से microorganism को detect कर सकते हैं. Actually here the purpose is to identify the microorganisms depending upon their genotypic characteristics. So we also discussed that by sequencing the ribosomal DNA, we are able to identify the microorganisms which are uncultivated. And there I told you approximately there are 99% microorganisms which are uncultivated. So that's why that could be a approaching technique that can be used to identify the uncultivated organism. And here I quoted an example that the organism Trephorrima whipple, that is causative agent for the Whipple disease, that can only be detected with the PCR and by sequencing the ribosomal DNA, as this organism that is not cultivated up to the date. So we will extend it out, और हम इसको आगे देखते हैं कि what we are going to discuss today, characterizing the strain differences, etc., etc. But before that, before the start of it, let me take the attendance, और फिर हम इस पे बात करते हैं, ठीक है? ओके, आप थोड़े से ही लोग हैं, मुझे बता दीजिए कौन कौन आया हुआ है. Adiba is not here, Afan is not here, Amna Shehzad is not here, and okay, it is 9:40 and I'm going to log the meeting right now. And the attendance time, this is okay, Adiba Aslam is there, Afan Tariq Rana, Amna Shehzad, Anika Tabassum, Anila Khan, okay, Aksa Ruxana, Ariba Nasir, Fiza Nadeem, Ghulam Rubani, Ikra Shahbaz, Ikra Sohail, Present, sir. okay, Iza Amir, Present, sir. Yes, okay, sir. and Yes, sir. Juwaria Aslam, Present. Present. okay, and Mariam Nadeem, Present, sir. Marwa Abbas, she's not here, Mehreen, Mohammed Bilal Arshad, Present, sir. Mohammed Haris Abbas Khan, Present, sir. Mohammed Naman Ali, Mohammed Sabir, Mohammed Uzair, Munaza Shafiq, Nimra Nadeem, Present, Nimra sir. okay, Nimra Khalik, Present.
and Nishat, Rabia Sharif, Rahima Rana, Rana Nabil, Present, sir. Rida Athar, Present, sir. Seher Sajid, Saifullah Malik, Sarish, Yes, sir. Sundar Sarooj Afshar, Syed Karamat Hussain Shah, Usman, Wanya Mansoor, Zainab, Present, sir. Zakirullah, Zirwa Rahat. Present, sir. Okay. So we are moving towards the lecture. And please be on time. I have told you already, after 9:40 I will not allow anyone to enter in the class. So that's why I have taken the attendance today. Okay. So we were talking about the identification of the microorganisms, and in the identifications, now today we will talk about the characterizing the strain differences. अभी तक हमने जितना भी पीछे पढ़ा है identification and identification strategies में, we have talked about multiple strategies, और उन strategies के अंदर हमने microscopic examination, culture characteristics, इसके साथ साथ हमने देखा कि how microorganisms they can be identified on the basis of the biochemical variations, और बायोकेमिकल टेस्टिंग पे हमने बात की. अच्छा, बायोकेमिकल टेस्टिंग के साथ साथ now you are able to understand that on the basis of different biochemical characteristics and differences between different microorganisms, we can identify the microorganisms and we can identify the differences between different strains. तो इसमें हमारे पास कुछ मज़ीद बातें भी आती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रेन, if there is a species के अंदर microorganisms different हैं. For example, you are familiar with it, the difference between strain and species. तो अगर एक ही species के अंदर हम 2 से ज़्यादा microorganisms को अगर compare कर रहे हैं, तो उसमें minor differences की base पे हम microorganisms को identify कर सकते हैं on the basis of biochemical testing. यानी कि बायोकेमिकल जितना भी हमने टेस्ट किए हैं, ये टेस्ट हमारे पास इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं कि एक ही स्पीशी के अंदर मौजूद डिफरेंट स्ट्रेन्स को करेक्टराइज कर सकते हैं. सो द करेक्टराइजेशन ऑफ द स्ट्रेन्स that are present in a species based on the biochemical typing, that would be termed as biovar or biotype. Biovar और biotype. इसमें मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से आपको एग्जांपल दूंगा कि this is a group of strain that have a characteristic biochemical pattern. तो हमारे पास जो बायोवार या बायोस्ट्रेन के जो हम टर्म यूज़ करेंगे, ये उस स्ट्रेन के लिए यूज़ करेंगे जो कि एक स्पीशीज से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बाकी स्पीशी के अंदर जो स्ट्रेन है उनमें नहीं है. तो हम बायोकेमिकल टेस्टिंग से या बायोकेमिकल टाइपिंग से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड वी आर एबल टू फाइंड आउट द डिफरेंस between the different strains of a species. इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल टाइपिंग. और फिर इसमें हम इसको शो कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर इकोलाई है और इकोलाई का कोई डिफरेंट स्ट्रेन है, तो हम इसको शो करेंगे. लिखेंगे हम इकोलाई, आगे लिखेंगे बायोटाइप, हियर बायोटाइप, और आगे जो भी उसका नाम है, मिसाल के तौर पे 0157. दिस कुड बी दैट कि ये ऑर्गेनिज्म जो 0157 है, दिस belongs to the species कोलाई, लेकिन इसकी जो बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कोलाई से डिफरेंट हैं. सो दैट्स वाई इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बायोटाइप. और दिस इज बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल डिफरेंसेस, तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिकल टाइपिंग. तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक और इसी से मिलती जुलती अगर मैं बात आपको दिखा सकूँ. दिस इज द सीरोटाइप, दैट इज सैल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप एंटेडाइडिस. तो ये सैल्मोनेला एंटेरिका ऑर्गेनिज्म है जिसका डिफरेंट स्ट्रेन है एंटेडाइडिस,
and that is different on the basis of serotype molecules. ये हमने serology और serotyping पढ़ी थी अभी पिछले लेक्चर के अंदर, कि हमने पढ़ी थी serotyping, याद है जी किसी को? सैफ, सैफ आर यू जी देयर? सर, पढ़ी थी। जी सर। हाँ हाँ, तो इसी तरह से serology क्या थी कि एक्चुअली द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर सकें या आइडेंटिफाई कर सकें। तो हियर आई जस्ट वांट टू से दैट कि सैल्मोनेला एंटेरिका एक ऑर्गेनिज्म है, और सैल्मोनेला एंटेरिका की एक स्ट्रेन जिसका नाम है एंटेडाइडस, और ये स्ट्रेन सैल्मोनेला एंटेरिका से डिफरेंट कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ द सीरोटाइप, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रेन। इसके साथ साथ सेम वही बात जो हमने अभी रिपीट किया बायोकेमिकल टाइपिंग में, कि वी कैन कैटेगराइज डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन, और बायोकेमिकल टाइपिंग के बेस पर हम उसको कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि दिस बायोटाइप या बायोवार, ये बायोटाइप या बायोवार जो है ये क्या है? दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेन्स दैट हैव अ करेक्टरिस्टिक बायोकेमिकल पैटर्न। इसी तरह से इसी मेथड को यूज करते हुए वी वर एबल टू आइडेंटिफाई the strain alter of the Vibrio cholera. Vibrio cholera, that is a causative agent of the cholera in human being. You are familiar with it कि Vibrio cholera जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉलरा कॉज करता है, लेकिन इसकी स्ट्रेन एल्टर Vibrio cholera biovar alter that was very notorious in the history in causing the cholera epidemics. तो इस वजह से ये एक एग्जांपल है कि विब्रियो कॉलरा से ही बिलोंग करती है, कॉलरा स्पीशीज से ही बिलोंग करती है, बट that is a biochemical a bit different, so that's why we will use the term Vibrio cholera biotype alter. इसी तरह से Salmonella enterica serotype Enteritis. अच्छा, अब अगर हम आगे मूव करें, hey, this is a table that is a comparison between the different typing methods, biochemical typing, serological typing and genomic typing etc. इसमें बायोकेमिकल टाइपिंग हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ, कि बायोकेमिकल टेस्ट जो हैं दे कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ ये बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो ये स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं, हाउएवर दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्पीशी। और इसके साथ साथ जी ग्रुप ऑफ नॉर्मली जो हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ स्ट्रेन्स दैट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स बायोकेमिकल पैटर्न दैट इज कॉल्ड बायोटाइप, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। इसके साथ साथ सीरोलॉजिकल टाइपिंग क्या होगी? सीरोलॉजिकल टाइपिंग होगी कि द कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन the molecules of the protein and carbohydrate that are present on the surface of the strain. इसकी बेस पे हम जो कैटेगराइजेशन करेंगे उसको हम सीरोटाइप कहेंगे, और बायोकेमिकल टेस्ट की बेस पे जो हम कैटेगराइजेशन आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको हम बायोवार या बायोटाइप कहेंगे। इसके साथ साथ जीनोमिक टाइपिंग में अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जीनोमिक टाइपिंग में हम राइबोसोमल डीएनए को इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके साथ साथ पीसीआर था, फिश का फिनोमिना था, मेथड्स थे। तो आज के लेक्चर में मजीद हम पढ़ेंगे अबाउट द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म्स, कि हाउ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म दे आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेन्स। अच्छा, इसके साथ साथ हम फेज टाइपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम फेज टाइपिंग से मुराद ये है कि वी कैन डिटेक्ट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एनी बैक्टीरिया अगेंस्ट एनी फेज। आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट फेजेस, खास तौर पर बैक्टीरियोफेजेस विच हैव एबिलिटी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। आई रिपीट माय वर्ड्स, ज़रा फोकस कीजिएगा। फेज टाइपिंग, इसमें मैंने बात की है बैक्टीरियोफेजेस की, और यू नो दैट बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस विच हैव एबिलिटी टू किल और टू ईट द बैक्टीरिया। अब मसला ये है कि नॉट ऑल द बैक्टीरिया दे आर ससेप्टेबल टू द वायरस, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव द वायरस ए, ये वायरस ए जो है ये हर किस्म के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा, ये सिर्फ लिमिटेड बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा और उनको ही किल करेगा। तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल इकोलाई है, तो इकोलाई को भी हर वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। देयर वुड बी सम स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजेस व्हिच विल बी एबल टू किल द इकोलाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया और फेजेस का जो रिएक्शन है, या बैक्टीरियोफेजेस का जो रिएक्शन है, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक।
यानी कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो हैं वो स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेज जो हैं दे आर एबल टू इन्फेक्ट द स्पेसिफिक बैक्टीरिया। सो दिस स्पेसिफिसिटी दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमारे पास इसको द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ susceptibility to the various types of the bacteriophages जिसको हम कहते हैं phage typing। और ये अभी हम आगे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि how we can perform the phage typing। इसके साथ साथ एंटीबायोग्राम्स की बात करते हैं। एंटीबायोग्राम्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि there are the antibiotics, बहुत सारे inhibitory compounds ऐसे हैं which have ability to kill and inhibit the growth of the microorganisms। और एंटीबायोटिक जो हैं या दे आर द प्रोटीन इन नेचर। और हम जनरली ये कहते हैं कि जो सारी नाउ देयर आर लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द मार्केट। तो ये सारी की सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं दे कैन नॉट बी यूजफुल अगेंस्ट ऑल द बैक्टीरिया। these are specific bacteria are can be killed by the specific antibiotics। तो यहाँ पे भी हम एंटीबायोटिक स्पेसिफिसिटी को यूज करते हुए डिफरेंट स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम जो स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आर यू गाइस फेमिलियर विद दिस RFLP? पहले इसका कभी नाम सुना है, कभी इसको किसी लेवल पे पढ़ा है RFLP इसको? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सर ये पीसीआर में वो पढ़ा था, उसमें ये मतलब जो सीक्वेंसेस होते हैं उनके फ्रेगमेंट्स वो करते हैं, बनाते हैं। ओके, इसके अलावा किसी ने सुना हो? एनीवन एल्स? नो वन? ओके, इसका इस यहाँ ज़रा फोकस कीजिएगा। इसका एज इट्स नेम इज इंडिकेटिंग दिस इज रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ polymorphism, RFLP, restriction fragment length polymorphism। अब इसमें होता क्या है कि we take the DNA of the strain और उस DNA को हम ट्रीट करवाते हैं restriction enzymes के साथ। You know that there are certain enzymes which are called restriction enzymes, and these enzymes they have ability to cut the DNA at the specific sites, and these enzymes they are present into the bacteria। restriction enzymes का तो पता है ना जी? restriction enzymes जी सर। सही है। तो restriction enzymes actually these are the bacterial enzymes that has ability to cut the DNA at specific positions। तो हम क्या करेंगे कि अब हमने करना क्या है कि हम स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्ट्रेन का डीएनए लेंगे और उस डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करवा देंगे। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे तीन जो है ये डीएनए है। दिस इज रेड वन इज द डीएनए ऑफ स्ट्रेन ए, ब्लू स्ट्रेन बी एंड दिस पर्पल दैट इज स्ट्रेन सी। अब इन तीनों को हमने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करवाया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम मैं फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ इको R1। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। For example, the restriction enzyme's name is the eco R1, eco R1। This is the restriction enzyme that we used. What happened with my mouse? Okay, where is it? Unfortunately, my cursor is disappeared. I don't know where is it. Anyways, okay, तो जो हम स्ट्रेन का नाम यूज कर रहे हैं दिस इज द इको R1 and we used it to cut the DNA। Okay, अच्छा अब यहाँ पे डीएनए हमारे पास 3 स्ट्रेन्स का डीएनए है। वी आर अनअवेयर दैट कि ये जो तीनों स्ट्रेन्स हैं ये एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं या नहीं है, यानी कि इनका डीएनए सीक्वेंस मैच करता है कि नहीं करता। तब हमने क्या किया, क्योंकि जो इको R1 है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बड़ी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे कट करता है। अब इको R1 ने क्या किया कि उसने जो स्ट्रेन ए था, स्ट्रेन ए के डीएनए को इसने कट करवा दिया फ्रॉम these two positions here। if you can know what happened with my mouse, this is not working, please give me a second to figure it out। This would be like here।
I don't know what happened with mouse. This is in the silent. सर कोई मसला नहीं, आप हमें ऐसे ही बता दें, हम डिक्टेट कर दें, हम लिख लेते हैं कोई अब लिख तो लेंगे बट आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं जब तक पूरी तरह समझा ना सकूं बात को. स्टिल लेट मी चेक इट आउट कि मेरे माउस के साथ हुआ क्या है. कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है इसके साथ. Even this is not changing the slides. Okay. Oh, got it. चलें सैयद जी, okay, I'm back finally. So मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा था कि we will treat the DNA of our strains and उसके result में हम चाह क्या रहे हैं कि we are using actually the restriction enzymes, and if the restriction enzyme that will cut, and you know that restriction enzymes, they are very specific in their site cutting. और restriction enzyme, for example, अगर ये strain A है तो इसको restriction enzyme ने यहाँ से कट करके इसके 3 bands बना दिए इस DNA के. One band is of 3 kb, second band is of 6 kb, and third band is of 1 kb. अब हमने जब strain B को कट करवाया restriction enzyme के साथ, तो it has cut the DNA in the 3 bands, but the bands are of different positions. अब हुआ क्या कि हो सकता है कि जो रेड वाला डीएनए था, इसमें कटिंग साइट यहाँ पे मौजूद थी आफ्टर द 3 केबी, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे कट कर दिया. अब जो ब्लू है इसमें कटिंग साइट जो है, इट माइट पॉसिबल दैट इज प्रेजेंट आफ्टर द 5 केबी, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ से कट किया. बैंड्स आर 3 नंबर, बट इसमें बैंड्स का साइज वेरी कर गया. वन इज ऑफ 5 केबी, सेकंड वन इज ऑफ 4 केबी, एंड द अदर वन इज ऑफ 1 केबी अगेन. व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्पल डीएनए, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की 3 कटिंग साइट्स हैं. जो ऊपर वाले दोनों डीएनए है इसके अंदर 2 कटिंग साइट्स हैं. 2 कटिंग साइट पे जब उसने कट किया तो वी हैव द 3 बैंड्स. ओके, अब यहाँ पे 3 कटिंग साइट्स हैं. एक कटिंग साइट 3 केबी के बाद है, दूसरी कटिंग साइट फिर 2 केबी के बाद है, और उसके बाद तीसरी कटिंग साइट जो है वो इसके बाद 4 केबी के बाद है. नाउ वी आर हैविंग 4 बैंड्स, 1 2 3 4 बैंड्स. अब ये जो 4 बैंड्स हैं एक्चुअली, अभी अगर आप देखें तो तीनों स्ट्रेन के डीएनए में हमें ये नहीं पता था कि ये तीनों स्ट्रेन सिमिलर हैं या नहीं है. व्हेन वी कट द डीएनए विद द restriction enzyme, जो हमारे पास restriction fragments आए, these are called the fragment. जो हमारे पास restriction fragments आए, ये different length के आए हैं. रेड वाले की लेंथ डिफरेंट है, ब्लू वाले की डिफरेंट है, और पर्पल वाले की डिफरेंट है. नाउ वी विल रन दिस डीएनए ऑन द एगरोस जेल. अगर एगरोस जेल पे हम इस डीएनए को रन करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यू नो दैट एगरोस जेल जो है दैट इज एबल to distribute the DNA on the basis of their sizes, DNA fragments को. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ये वाले जो 3 strains हैं, this one, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 वाले, इन तीनों के अंदर जो बैंड्स हैं ये बिल्कुल अलाइंड हैं. इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एक ही स्ट्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं. अब अगर आप इसको कंपेयर करें इस वाले के साथ, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ अगर कंपेयर करें, तो सेकंड वाले के अंदर बैंड का साइज भी डिफरेंट है, बैंड पोजीशन भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द लेन 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बाय रनिंग द एगरोस जेल वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट either this strain 1 is similar to strain 2 or not, कि जो strain 1 है ये strain 2 से similar है कि नहीं है, we are able to find it out. तो इसी वजह से so this is the procedure for the restriction fragment length polymorphism. There we cut the DNA, और हमने जो DNA इसको cut किया with the help of restriction enzymes, जिससे हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बने. फिर हमने उन फ्रेगमेंट्स को एगरोस जेल पे रन किया, एंड बाय कंपेयरिंग द बैंड्स वी आर एबल टू फाइंड इट आउट ईदर द स्ट्रेन्स आर सिमिलर और नॉट. ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है जी? किसी को कोई मसला मसाइल? साइज और बैंड की पोजीशन किस बेस पे चेंज होती है, कि वो न्यूक्लियोटाइड कितनी बेस पेयर का है उसकी बेस पे? हाँ, कि बैंड का जो साइज है वो साइज कितना है.
अगर बैंड का साइज हमारे पास अब जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा है, आपको दिखाया कि एक के अंदर बैंड का साइज हमारे पास था। अगर मैं आपको फिर से दिखा सकूं वही दिस वन, कि ये 3 KB का, ये 6 KB का, 1 KB। अब होता है इसमें क्या है कि जो 1 KB का सबसे छोटा बैंड होता है, ये जेल में सबसे नीचे तक मूव कर सकता है। यहाँ से हमने जेल स्टार्ट किया ऊपर से, फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव स्टार्टेड द जेल फ्रॉम दिस पॉइंट। तो उसमें होगा क्या कि इस जेल के आपने लैब में ग्रोथ जेल रन की होगी, इसमें करंट होता है यहाँ पे ना, इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है नॉर्मली, ठीक है। तो चूंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस। तो जो हमारे पास इसमें लाइटर बैंड होंगे, जो छोटे साइज का बैंड होगा, डेफिनेटली दैट विल मूव फास्टर, और वो मूव करके आगे पहुंच जाएगा एट द एंड। जो जो हैवियर बैंड है, जैसे कि हम यहाँ पे पीछे देख रहे हैं कि 3 KB का है, 6 KB का, 6 KB का हैवी बैंड है, तो हैवी बैंड जो है ये ऊपर ही रह जाएगा यहाँ पे करके। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 6 KB का बैंड सपोज कर लें, दैट विल स्टिक हियर। तो अब हम इसकी बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये पैटर्न सेम है। अगर आप देखें तो इन तीनों स्ट्रेन्स का पैटर्न सेम है, इन तीनों का। इसका मतलब है कि दे आर द सिमिलर स्ट्रेन्स, इनका पैटर्न सेम है। अगर आप इन तीनों को इसके साथ कंपेयर करें तो इसका पैटर्न डिफरेंट है, इवन इसका पैटर्न फर्स्ट वाली के साथ भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट स्ट्रेन्स थे। तो बाय comparing the restriction fragments we on the agarose gel, we are able to identify that either the strains are similar or not. Okay, so this is the identification of the strain. Is that clear? Yes, sir. Good. सर ये फिर क्राइम केसेस में भी इसी तरह डीएनए मैच करते हैं? Yes, उसमें हमारे पास सर ये सिर्फ उसमें स्टेन्स के लिए होता है, या अगर हमने ह्यूमन डीएनए भी मैच करना वो भी इसी तरह ही होता है ना, उसका भी प्रोसेस डेफिनेटली ह्यूमन डीएनए का प्रोसेस भी यही है। और उसमें थोड़ा सा, चूंकि ह्यूमन डीएनए अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, वी हैव एडेड 1 or 2 स्टेप्स। उसमें हमारे पास माइक्रो सैटेलाइट्स और कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल इज सेम, कि हम इसी तरह से इसी तरह से आप लोगों ने शायद FSC में पढ़ा होगा कि उसमें पेटर्निटी इश्यूज और पेरेंटहुड के जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो डीएनए में कंपैरिजन करते हैं, दिस इज एक्चुअली द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। और हम रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स कैसे बना रहे हैं, हम कट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और हमें इस बात का कंफर्म है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं ये स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं। तो डीएनए में जहाँ पे भी इनकी स्पेसिफिक साइट होगी ये कट कर देंगे। अगर तो 2 डीएनए बिल्कुल सिमिलर हैं तो ये सिमिलर जगहों से कट करेंगे, और अगर 2 डीएनए मुख्तलिफ हैं तो ये मुख्तलिफ प्लेसेस से कट करके मुख्तलिफ साइज के बैंड्स बना देंगे, ठीक है। जी सर। ओके जी, तो सैफ समझ में आ गया आपको? जी सर। Okay, so moving next, next that we are going to discuss, that is about the phage typing. Here, this one, the phage typing. हम phage typing पे बात सर करेंगे जी। सर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो एक है, फिर ये डिफरेंट प्लेसेस पे क्यों वो मतलब उसे कट करता है वो फ्रेगमेंट्स को? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं अब थोड़ी इसकी डिटेल में जाना पड़ जाएगा मुझे। ये वैसे क्वेश्चन बनता नहीं था। एनीवेज देखें, फॉर एग्जांपल जी, मैं लिख देता हूँ DNA 1, और मैं इसका सीक्वेंस लिख देता हूँ सैफ ATGG, मिसाल के तौर पे दिस इज द सीक्वेंस। ओके ओके, एंड जो मेरे पास अब मैं लिखता हूँ DNA 2 का सीक्वेंस, इसका मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ ओके। अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वो है एंजाइम है, वो है इको R1। अब I told you कि enzyme has ability to cut the DNA at specific site। enzyme जो है वो सीक्वेंस डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये जो इको R1 है, इसने कहाँ पे कट करना है, जहाँ पे 2 कंजेक्टिव GG आएंगे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस आएगा GATC, एंड हियर आई विल ड्रॉ कि ये जो एंजाइम है दैट विल cut the DNA from the position where the GATC will come। यानी कि जहाँ पे भी DNA के अंदर GATC आएगा, ये उससे पहले कट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो अब अगर आप इन दोनों सीक्वेंसेस को देखें, तो इसमें कहाँ पे GATC आता है? इसमें GATC आता है, पहले सीक्वेंस में देखें कहीं पे आता है GATC, यहाँ पे आता है, हियर एट दिस प्लेस। तो एक कट यहाँ पे लगेगा
ओके, इसके बाद देखें GATC यहाँ पे आता है, दूसरा कट यहाँ पे लगेगा। ओके, अब अगर जो आप DNA2 को देखें तो इसमें कहीं GATC आता है, GATC, इस पे कहीं पे भी GATC नहीं आता। तो देखें एंजाइम एक ही है, लेकिन उसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो दूसरे बैंड के अंदर है ही नहीं है। तो फिर इसमें क्या होगा कि जो पहले वाला DNA का बैंड था, इसमें हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। जो दूसरा बैंड है, जो दूसरा सीक्वेंस है, उसके अंदर हमारे पास कोई भी कट नहीं आएगा, क्योंकि क्यों, इसके अंदर जो एंजाइम की कटिंग साइट है, जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, वो ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? जी सर। हाँ, तो अब अगर मैं इसके साथ यहाँ पे मज़ीद मैं इस स्टैंड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, अगर आप देख सकें हियर, तो अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करें तो इसके जनाब यहाँ पर यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है, तो फिर जो एंजाइम है दैट वुड बी एबल टू कट द DNA एट दिस साइट हियर। तो अब इस केस में हमारे पास ये जो DNA2 है, इसके सिर्फ 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और जो DNA1 है, इसके हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कटिंग साइट और द रिस्ट्रिक्शन साइट दैट इज प्रेजेंट इनटू द DNA। तो एंजाइम तो सेम है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन साइट DNA में नहीं है। ओके, जी सर। समझ आ गई है वाकई? जी सर। Good. So this is actually about the genomic typing. So next one that we are going to start, this is the phage typing, and there I told you कि different phages जो हैं they are able to infect the bacteria, और ये जो specificity है that is actually the key to identify the bacteria on the basis of their phages. तो इसमें अगर आपको पता है कि phages को हम grow कैसे करवाते हैं? Do you have any idea? Phages are the viruses ना? Do you have any idea how can we grow the phages? How can we grow the phages? Do you have any idea about it? सर लिविंग सेल्स पे वायरसेस ग्रो करते हैं तो शायद हाँ, बैक्टीरियल। बिल्कुल सही है। तो ये चूंकि बैक्टीरियोफेजेज हैं, तो अभी इनके पे बात करते हैं कि इनको कैसे ग्रो करना है। लाइक these are 2 पेट्री प्लेट्स। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, जरा स्टेप्स को पहले देखिएगा, उसके बाद समझते हैं कि दिस इज द पेट्री प्लेट, एंड इन दिस पेट्री प्लेट देयर इज अ एगर। ये एगर लेयर है जो इसके अंदर आपको नजर आ रही है। अब हुआ क्या कि हमने एक बैक्टीरियल सैंपल लिया, मिसाल के तौर पे इकोलाई का सैंपल ले लिया, और हमने उस सैंपल को ग्रो करवाया है ब्रॉथ के अंदर। हियर इन दिस टेस्ट ट्यूब द ब्रॉथ दैट कंटेन्स द इकोलाई सैंपल, एंड वी पोर्ड द सैंपल ऑन टू द एगर सरफेस। और जब हमने स्टिकिंग मेथड पढ़ा था, तो हमने स्टिकिंग मेथड से पहले पोरिंग पढ़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सैंपल पोर करते हैं एगर की सरफेस पे, और फिर ग्लास स्प्रेडर के साथ पूरी सरफेस के ऊपर उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो ये हमने सैंपल पोर किया एगर मीडियम के ऊपर। अब हम इसको पूरे एगर मीडियम पे स्प्रेड कर देंगे। अब होगा क्या कि ये आपने बैक्टीरिया जो है पूरी एगर सरफेस पे स्प्रेड कर दिया। अब बैक्टीरिया पूरी एगर सरफेस पे ग्रो करेगा, एंड दैट वुड बी कॉल्ड द लॉन ऑफ ग्रोथ, लॉन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, लॉन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इसमें हमने आगे क्या करना है कि अब हमने जनाब फेजेस, जो बैक्टीरियोफेजेस एंड द फेजेस व्हिच हैव एबिलिटी टू किल द बैक्टीरिया, टू ईट द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजेस। हमने फेजेस लिए सिरिंज में या किसी भी पाइपेट में या किसी माइक्रो पाइपेट में, और हमने ये जो अपना लॉन बनाया था इसके ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स लगा दिए। स्पॉट 1 2 3 4 5 6 स्पॉट्स लगा दिए। हियर इफ दिस फेज इज एबल टू किल द बैक्टीरिया, तो होगा क्या कि जहाँ पे हमने स्पॉट लगाया है उस वहाँ पे क्लियर जोन आ जाएगा। ये देखें, ये क्लियर जोन आ गया। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे नीचे बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो ख़त्म हो गई है, उसको फेज ने किल कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियर जोन आ गया, और ये बाकी जितनी भी हेजी एरिया ये बैक्टीरियल ग्रोथ है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये क्लियर जोन आ गया, दिस वन। इसी तरह यहाँ पे ये क्लियर जोन है, दिस वन। So these actually clear zones, they are determining that this virus that we have put there, that is able to eat the bacteria and that is able to kill the bacteria. Got it? तो ये clear सर zone एक हमारे बार पास दोबारा बता दें कि स्पॉटिंग किसकी की थी हमने? फेज की, वायरस की। सही है, सही है, ओके। तो हमें उसके बाद जब हमने ग्रो करवाया, तो अब अगर वायरस ग्रो किया है और वायरस जो है वो इस बैक्टीरिया को किल कर सकता था, तो उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। जहाँ पे किल किया वहाँ पे हमारे पास क्लियर जोन आ गया। दिस इज कॉल्ड द लिसिस जोन,
और ये क्लियर जोन जो है हमारे पास, दैट इज इंडिकेटिंग दैट दिस वायरस इज एक्चुअली हैज एबिलिटी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड टू किल द बैक्टीरिया। अब अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बना के दिखाऊं, सपोजिंगली दिस वन इज अ पेट्री प्लेट। इस पेट्री प्लेट के ऊपर इकोलाई स्ट्रेन हमने पोर कर दी है, इकोलाई स्ट्रेन स्प्रेड कर दी पूरी की पूरी, और इकोलाई स्ट्रेन जो है उसकी ग्रोथ आ गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैटी प्लेट ये है और दूसरी पैटी प्लेट जो है वो मेरे पास यहाँ पे ये आ जी। दिस इज फॉर द सूडोमोनास। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ अगर, दिस इज फॉर द सूडोमोनास, मैंने पी लिख दिया, एंड दिस इज फॉर द इकोलाई। ठीक है, अब कुछ वायरस लिए, कोई 6-7 वायरस लिए, 6-7 टाइप्स के वायरस लिए, उसमें से एक वायरस का स्पॉट यहाँ पे लगा दिया, एक वायरस का स्पॉट यहाँ पे लगा दिया, एक का यहाँ पे लगा दिया, एक वायरस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह इस प्लेट के ऊपर भी उन्हीं 6 वायरस के हमने स्पॉट्स लगा दिए, लाइक हियर, 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 हियर एंड हियर। ठीक है, अब स्पॉट्स लगा दिया। अब हमने इन प्लेट्स को किया इनक्यूबेट। अब अगर तो ये 6 वायरसेस जो है हमारे पास, ये 6 वायरसेस में से हो सकता है कि ये सूडोमोनास के केस में ये जो पहले 3 हैं, दिस वन, दे दे आर एबल टू किल द बैक्टीरिया, तो हमारे पास इन तीनों की जगह पे जोन आ जाएगा, लिसिस जोन आ जाएगा, क्लियर जोन आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इकोलाई के केस में हमारे पास, इकोलाई के केस में हमारे पास क्लियर जोन ना आए, और इकोलाई के केस में ये 6 के 6 हमारे पास क्लियर जोन्स ना आए। इसका क्या मतलब है कि ये जो वायरस था दैट वाज अनएबल टू किल द इकोलाई। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास पैटर्न डिफरेंस आ गया ना। सूडोमोनास के केस में तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 क्लियर जोन आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अज्यूम कर रहे हैं हम अभी, और ये इकोलाई के केस में हमारे पास कोई भी क्लियर जोन नहीं आया। तो दिस इज एक्चुअली determining, this is actually showing the pattern difference। और इस तरह से हम किसी भी दो स्ट्रेन को डिपेंडिंग अपॉन द फेज स्पेसिफिसिटी एंड ससेप्टेबिलिटी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और हम साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रेन एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं कि नहीं है। अब ये 2 स्ट्रेन थी, अब अगर हम एक ऐसा करेंगे, एक तीसरी पैट्री प्लेट लें और उस पैट्री प्लेट के अंदर अननोन बैक्टीरिया, कोई भी अननोन जिसके बारे में हमें नहीं पता, उस बैक्टीरिया के ऊपर भी यही 6 वायरस के स्पॉट्स लगाएं, लाइक हियर, लाइक हियर, हियर, हियर एंड हियर। तो अगर तो इस पैट्री प्लेट के ऊपर पैटर्न आ जाए इकोलाई की तरह का, यानी कि कोई भी लिसिस जोन ना आए, तो इसका मतलब है कि दिस रिजेंबल्स विद द इकोलाई। अगर इसके ऊपर पैटर्न इस तरह से आ जाए कि 3 लिसिस जोन आ जाए, तो इसका मतलब है कि दैट रिजेंबल्स विद द सूडोमोनास। तो हियर by this method we are able to identify the bacterial strains, the microbial strains। बात समझ में आई है जी आप लोगों को? भाई किसी को बात समझ में ना आई हो? सैफ समझ में आ गई? जी सर। आर यू श्योर? जी सर, जहाँ पे वो मतलब बैक्टीरिया, वो फेज जहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर देगी तो उधर पैटर्न और बन जाएगा। उधर जोन आ जाएगा ना क्लियर। जी तो सर। इस तरह से हम एक ही टाइम पे एक प्लेट के ऊपर 10-20 वायरस इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप इस प्लेट में देखें तो इसके ऊपर जितने भी डॉट्स लगे हुए हैं सारे वायरस के डॉट्स लगे हुए हैं, लेकिन क्लियर जोन सिर्फ 2 जगहों पे है, यानी कि जो 2 वायरस थे, ये वाला और ये वाला, दे वर एबल टू किल दिस बैक्टीरिया। और अगर आप यही पैटी प्लेट देखें तो इसके ऊपर भी सेम वायरसेस हैं जो कि इसके ऊपर है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें 4 और एक 5 क्लियर जोन दे दी हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर ये सेम होते तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम क्लियर जोन इसी पोजीशन पे आता है, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द फेज टाइपिंग, और हम इस पे बैक्टीरिया फेज की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से वो कर सकती है। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन तो नहीं करना जी? सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलें, सही है जी। आगे चलते हैं हम। हाँ, दिस वन, दिस इज अनदर थिंग जो कि हमने यहाँ पे देखी,
दिस वन। अगली है एंटीबायोग्राम्स, दिस वन। एंटीबायोग्राम्स में अब ये फेज टाइपिंग में हम फेजेस को यूज कर रहे हैं और एंटीबायोग्राम्स में हम एंटीबायोटिक्स को यूज करेंगे। इसके अंदर भी हमने सेम प्रोसीजर यूज किया है और सेम प्रोसीजर में हमने किया क्या है कि वी डेड हमने पैटी प्लेट ली है और पैटी प्लेट के ऊपर हमने लॉन बनाया सेम बैक्टीरिया का और उसके ऊपर ये डिस्क रख दी हैं, डिफरेंट कलर की डिस्क। अब ये जो डिफरेंट कलर की डिस्क हैं इनके ऊपर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अगर ग्रीन वाली है तो इसके ऊपर हो सकता है पेनिसिलिन लगाई हुई हो हमने, ये इसके ऊपर जेंटामाइसिन, इस ग्रीन वाली के ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन वगैरह वगैरह। तो अब ये डिस्क हमने रख दी। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले आपको प्रिंसिपल समझा दूं कि इफ दैट बैक्टीरियल स्ट्रेन इज सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक तो इस एंटीबायोटिक के अराउंड ग्रोथ नहीं आएगी, ये नहीं ग्रोथ आई। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर जोन आ गया। यू नो दैट एंटीबायोटिक आर द हैव एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जोन देखें काफी बड़ा जोन है एज कंपेयर टू दिस जोन, ये जोन बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एंटीबायोटिक की एबिलिटी तो है बैक्टीरिया को किल करने की, लेकिन दिस इज वीक, दिस इज वीकर। अब अगर देखें हम यहाँ पे ये वाला जोन जो है, ये रेड वाला, ये बहुत ही छोटा जोन है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द एंटीबायोग्राम्स। वी आर यूजिंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एंड वी आर डिटर्मिनिंग that either this bacteria is able to resist the antibiotic or not। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये इन दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम एंटीबायोटिक के पैटर्न है, सेम पोजीशंस हैं। ये यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे मजेंडा है, यहाँ पे लाइट ग्रीन है, यहाँ पे पिंकिश है, यहाँ पे येलो। तो सेम एंटीबायोटिक डिस्क जो है वो सेम पोजीशन पे रखी हुई है चेक करने के लिए। लेकिन फ़र्क क्या है सिर्फ कि जो नीचे लॉन है ग्रोथ का, ये डिफरेंट स्ट्रेन का हो सकता है कि ये जो है ये स्ट्रेन ए का हो दिस वन और ये स्ट्रेन बी का हो, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेन अननोन थी, हमने इनका लॉन बनाया, इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स की डिस्क रख दी। अब हमें पता है कि एंटीबायोटिक जो है हमारे पास कौन सी डिस्क के ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक लगी हुई है। तो अब हमने इन दोनों के पैटर्न को कंपेयर किया। तो इसमें अगर आप देखें ये वाला जो इसमें जो ग्रीनिश जोन है दिस वन, ये जो ग्रीन जोन है ये काफ़ी बड़ा है, इसमें ग्रीन जोन बड़ा डिम है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रेन्स डिफरेंट हैं। बाकी सारे जोन्स को भी अगर कंपेयर करें, ये वाला जो पर्पल है ये देखें कितना बड़ा जोन है इसके अंदर, और ये पर्पल दिस इज़ वेरी लाइटर जोन। अच्छा, इसी तरह से ये जो रेड है दिस वन, इसमें काफ़ी क्लियर जोन है लेकिन इसमें जोन आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बी स्ट्रेन है दैट इज रेजिस्टेंट to this red antibiotic, but this A strain that is sensitive to this red antibiotic, so that's why it is killed with the red antibiotics. This is the story behind it. तो अब हम इसमें करते क्या है कि हम यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को एंटीबायोग्राम्स की? सर ये जो जोन मतलब जो साइज है वो ये हमें बताता है कि कितना रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया और कितना नहीं है। जोन आने का मतलब ये है कि देखें पहले पूरी पैटी प्लेट के ऊपर आपने बैक्टीरियल कल्चर तो दिया हुआ है, यहाँ पे जोन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ नहीं आई ना, ये खाली जगह रह गई है। खाली जगह का मतलब क्या है कि जो आपने एंटीबायोटिक दी थी ये एगर के अंदर डिसॉल्व कर गई है और जहाँ जहाँ पे ये डिसॉल्व कर गई है वहाँ वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया सेंसिटिव है इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, इसकी प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। अब अगर आप इस रेड वाली को देखें तो इसमें ये एंटीबायोटिक यहाँ पे पड़ी हुई है लेकिन फिर भी इसके बिल्कुल साथ बैक्टीरिया ग्रो किया। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, वो उसे कोई परवाह नहीं है कि एंटीबायोटिक पड़ी है कि नहीं, इस एंटीबायोटिक को वो कंसिडर ही नहीं कर रहा, रेजिस्टेंट है इसके, ठीक है। लेकिन सर ये भी तो है ना कि बैक्टीरिया वो जो बी स्ट्रेन है जिस तरह उसमें ग्रीन है उसमें भी थोड़ा सा जोन आया है लेकिन वो थोड़ा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, तो उसका हाँ ये मतलब है कि वो बैक्टीरिया को किल तो करे लेकिन उस पेस पे नहीं कर रहा है जितना हाँ एक इसके लिए फिर हम टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं इंटरमीडिएट जोन ऑफ इनहिबिशन, लार्ज जोन्स, स्मॉल जोन्स। और ये हम जोन्स को बाकायदा मेजर करते हैं स्केल लेके ना। इस जोन का हम मेजर करते हैं डायमीटर, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, डायमीटर मिलीमीटर्स में डायमीटर हम रिपोर्ट करते हैं। तो अब ग्रीन वाले का हम रिपोर्ट जब करेंगे तो हम कहेंगे कि स्ट्रेन ए के केस में हो सकता है इसका 10 मिलीमीटर हो, लेकिन स्ट्रेन बी के केस में देखें इसका इसका कोई 4 to 5 मिलीमीटर बनेगा। तो हम फिर इस तरह से इसका कंपैरिजन जो है वो रिपोर्ट करते हैं, ठीक है।
ओके भाई, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? जी सर। मुझे क्वेश्चन जिन्होंने किया था उन्हें ओके है? यस सर। चलें, सही है, गुड। सर और हाँ ऐसे भी जी हो जी, सकता है कि स्ट्रेन सेम हो बट ओवर द टाइम जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस शो करना स्टार्ट कर दे अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर जो है फ्रॉम वन स्ट्रेन टू अदर स्ट्रेन, प्लाज्मिड ट्रांसफर जो है, दैट कैन ट्रांसफर द रेजिस्टेंस, और इसके साथ ओवर द टाइम इट माइट पॉसिबल दैट बैक्टीरिया कैन बी रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक जिसके अगेंस्ट वो पहले सेंसिटिव था। ठीक है, तो यही तो रीज़न है जिसकी वजह से आजकल सुपर बग का बड़ा शोर चल रहा है। सुपर बग, दैट इज अ टाइफाइड strain which is resistant to many antibiotics. Earlier it was not, but now it is resistant to many antibiotics, and now it is a challenge that in the future how we would be able to cater such kind of strains which are now resistant to different antibiotics. तो ये हो सकता है। इसी वजह से हम किसी भी एक मेथड पे तो रिलाई नहीं कर रहे, हम डिफरेंट मेथड्स को कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन डिफरेंट मेथड्स को कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। गॉट इट? यस सर। चलें, गुड। यहाँ तक जी एक दफ़ा देख लें आज के लेक्चर को। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, एनी रेलिवेंट और इररेलेवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, यू गाइस कैन आस्क, और फिर हम आगे मूव करते हैं। एनी क्वेश्चन कोई भी हो सर देखने जी। इसमें फिर हम ये भी कह सकते हैं ना कि एंटीबायोग्राम जो है वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की स्पेसिफिसिटी भी बताते हैं हमें अननोन हाँ बैक्टीरिया बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं जी। सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारा एंटीबायोग्राम्स का पर्पस डिफरेंट है, इस वजह से हम इस बात को कंसिडर नहीं कर रहे कि इधर दे इन्फॉर्म अस अबाउट द ससेप्टेबिलिटी एंड द सेंसिटिविटी, इसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी और नॉट। जी। ठीक है, नो क्वेश्चंस, शुड वी मूव नेक्स्ट? सैफ, कोई सवाल नहीं है? नो सर। वाह सैफ, ग्रेट। सर जी सब ओके है। सही, गुड। चलें सर जी। हमारे मिड्स होंगे कि नहीं? वैसे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, उससे थोड़ी कम मेरे पास है, तो कोई पता नहीं। इफ दे आर प्लानिंग टू टेक द मिड्स, यू गाइस विल गेट द ईमेल एंड आई विल आल्सो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होंगे, लास्ट सेमेस्टर सर की तरह ये चलेगा। हमारे बाकी टीचर्स इस तरह करें कि वो असेसमेंट दे रहे हैं कि आपने इसकी जगह असेसमेंट सबमिट करानी है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के उन्होंने हमें टॉपिक्स दे दिए हैं और उसमें प्रोजेक्ट सबमिट कराने हैं। तो इस तरह नहीं, वो आप असेसमेंट का तो उसका असेसमेंट का तो डिफरेंट क्राइटेरिया है ना, मतलब वो तो हमारे पास उसका उसका हेड डिफरेंट है।
उसमें यही करेंगे ना। आपको शायद मैंने इसमें जो आप LMS पे अगर आप देखें तो मैंने जो अपना कोर्स आउटलाइन दी है उसके अंदर जो डिमार्केशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास पिछले सेमेस्टर की तरह ही 60% जो है वो फाइनल होगा और जो 40% है ना वो असेसमेंट्स हैं और असेसमेंट्स उस 40% में मिड्स भी शामिल हैं। अब चूँकि आप लोगों की लैब है तो इस वजह से जो आपका फाइनल लेंगे वो लेंगे 50 नंबर का और उसके साथ साथ 30 नंबर का जो असेसमेंट्स टोटल और 20 नंबर की आपकी लैब हो जाएगी। ठीक है। अब असेसमेंट के लिए मैंने ये सोचा है, मैंने कुछ असाइनमेंट टॉपिक्स जो हैं वो इनलिस्ट किए हैं लेकिन अभी मेरे पास पूरे बन नहीं सके, तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको अब अगली क्लास में शायद या शायद उससे अगली क्लास में टॉपिक्स दे दूंगा, साथ में आपको ये भी बता दूंगा पूरा रिटर्न में कि हाउ यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट और फिर हम उस असाइनमेंट को असेसमेंट में कंसिडर करके उसको ले लेंगे। इसके साथ साथ हमारी असेसमेंट में क्विज़ेस चल रहे हैं, वो भी असेसमेंट का ही पार्ट है। तो क्विज़ का टोटल वेटेज जो है वो रख लेंगे 10 मार्क्स का और पीछे रह जाएंगे 20, तो 20 मार्क्स में 10 मार्क्स की 2 असाइनमेंट्स हम कर लेंगे। वो असाइनमेंट्स मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, आप उसमें कोई 1 महीना लेके इजीली उसको सबमिट करवा दीजिएगा। तो उसकी जो टाइम लाइन है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, मैं प्रिपेयर कर लूँगा होपफुली बाय द नेक्स्ट ट्यूसडे, जो नेक्स्ट हमारी कमिंग क्लास, एक तो कल है वो नहीं, जो उसके बाद वाली क्लास होगी उस तक तो आपको दे दूंगा टॉपिक्स। तो इस वजह से फिर मैंने यही प्लान किया है कि इफ़ देयर आर नो मीट्स तो फिर हम उस मार्क्स को इस तरह से कवर कर लेंगे। ओके सर। चलें जी, अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट पे, एंड दिस इज़ एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस क्लासिफिकेशन पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसा कि हमारे पास अभी पीछे जो जनरल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उनके कुछ ड्रॉबैक्स पे बात की है। इसके अलावा हमने DNA सीक्वेंसिंग, DNA क्रोनोमीटर इस पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज इट मीन। एंड साबिर साहब, जब आपका मुझे मैसेज आया कि आपकी अटेंडेंस नहीं हुई, जब अटेंडेंस हुई थी यू आर नॉट इन द क्लास, तो जो उस टाइम जिसकी अटेंडेंस होगी वो होगी बेटा। अच्छा जी, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं अभी क्लासिफाइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, इस पे डिस्कशन अगर हम कर लें तो इसमें स्टोमेटोलाइट्स है, ये मैं अभी इसको रखूँगा ताकि लेटर ऑन एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके अलावा कुछ जनरल प्रिंसिपल्स जिनकी अभी हमने बात किया कि वी कैन परफॉर्म द प्रिंसिपल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड इसके अलावा जो DNA सीक्वेंसिंग के बेस पे ये जो अभी हमने पीछे DNA सीक्वेंसिंग की, इसके बाद उससे पहले हमने 16 राइबोसोमल DNA की बात की, सीक्वेंस फाइंड आउट किए, और उससे पहले साथ साथ हमने फिश की बेस पे DNA सीक्वेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की। या इसके अलावा नाउ वी हैव एडवांस टेक्निक्स फॉर द DNA सीक्वेंसिंग, जैसा कि F Sanger, शॉटगन सीक्वेंसिंग वगैरह वगैरह। तो हम करते क्या है कि हमारे पास अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसका DNA एक्सट्रैक्ट करते हैं, DNA एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और उसको पहले से मौजूद DNA के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। इफ दैट इज मैच्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि दे बिलोंग टू द सेम स्पीशी, एंड इफ दिस इज नॉट मैच्ड इट मींस दैट दैट इज अ बिट डिफरेंट। तो इसके साथ साथ अब एक मसला ये भी एक आता है कि द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट horizontal, anyone is familiar with the horizontal gene transfer, DNA transfer? What is that? Horizontal DNA transfer, what is that? Horizontal DNA transfer, किसी को अंदाजा है? वर्टिकल DNA ट्रांसफर क्या होता है, इसका अंदाजा है किसी को? वर्टिकल DNA ट्रांसफर, वर्टिकल, नो आइडिया अबाउट इट? ओके, द ट्रांसफर ऑफ DNA, अभी अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज वर्टिकल, पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स। यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फिशन करते हैं, एक माइक्रोबियल स्ट्रेन था, उसकी बाइनरी फिशन उसने की और 2 डॉटर सेल्स बने, और पेरेंट सेल से जो DNA है वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हुआ, इसको हम कहेंगे वर्टिकल। अब अगर इस तरह से है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन दैट वाज अ स्ट्रेन, और यहाँ से हम 2 डॉटर स्ट्रेन जो थे ये इसने बनाए, दिस वन एंड दिस वन, और दिस इज द वर्टिकल DNA ट्रांसफर हियर, द वर्टिकल। अब अगर ऐसे हो कि दिस इज अ स्ट्रेन, जो फुली ग्रोन स्ट्रेन है, मेच्योर स्ट्रेन है, एंड दिस इज एन अदर स्ट्रेन, और ये वाला स्ट्रेन जो है ये इस स्ट्रेन के अंदर DNA ट्रांसफर करे,
तो ये इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर, बिकॉज इन दिस ट्रेन the DNA in this example, the DNA is not being transferred from ancestor to the descendant. In this example, DNA is being transferred from one strain to the other strain. ठीक है, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर एंड दिस हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर एक्चुअली इसको हम डिफाइन करेंगे। इसकी एग्जांपल्स कॉन्जुगेशन होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर। इसके साथ साथ हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज वन टाइप ऑफ एनी हाउ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर। इसके साथ साथ ट्रांसडक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर। तब होता यूं है कि ये स्ट्रेन ए जो थी, दिस वाज द स्ट्रेन ए, और ये जो थी स्ट्रेन हमारे पास बी। अब ये हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती हों, लेकिन हॉरिजॉन्टल डीएनए जो ट्रांसफर होगा जब एक स्ट्रेन से दूसरी के अंदर, तो बहुत सारा कंटेंट दोनों का जो है वो हमारे पास डीएनए का मैच करना शुरू हो जाएगा। तो उस कंटेंट के मैच करने की बेस पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकती हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर है इसके बेस पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों स्ट्रेन हमारे पास जो कन्फ्यूजन आए कि ये दोनों स्ट्रेन एक ही स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर का यहाँ बताने का मकसद सिर्फ ये था। अच्छा, अब डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्री, दिस इज जस्ट लाइक द फैमिली ट्री, और इसको हम कहते हैं जनाब द फाइलोजेनेटिक ट्री। और इस फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर हम अगर आप देखें तो इसमें है क्या कि ये डिफरेंट स्ट्रेन्स को फाइलोजेनेटिकली दिखाया हुआ है, इनकी रिलेटेडनेस और इनकी रिजेंबलनेस, नॉट एग्जैक्टली द रिजेंबलनेस, सिर्फ रिलेटेडनेस को शो करने के लिए। अब इसमें एक स्ट्रेन जो है इसको ये जो इसमें कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें जो हैं ये रैंडमली ड्रॉन नहीं है। इन लाइनों की जो लेंथ है, जो इनकी विड्थ है, एक्चुअली दैट इज डिटरमिनिंग द एवोल्यूशन एरा। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले एक्विफिस पायरोफाइलस है, और पायरोफाइलस जो है ये जाके मैच करता है थर्मेटोगा मैरिटीमा के साथ। और इसी तरह से जो थर्मस एक्वाटिकस या डेनोकोकस हैं, ये जो है इनका इंसेस्टर सेम है, यहाँ पे ये सेम कॉमन पॉइंट है हियर, दिस इज द कॉमन पॉइंट जहाँ से ये दोनों निकल रहे हैं, कौन से, थर्मस एक्वाटिकस एंड डेनोकोकस। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो इंसेस्टर है दैट इज कॉमन। अब अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करें तो इसके साथ साथ क्लोरोफेक्सिस का और थर्मस एक्वाटिकस का, इन दोनों का इंसेस्टर यहाँ पे जाके सेम है। तो जहाँ पे ये थर्मस एक्वाटिकस है, जहाँ पे ये मैं निशान लगा रहा हूँ, दिस वन, इस पोजीशन को हम कहते हैं नॉड, NODE, नॉड। ठीक है, तो नॉड्स पे स्ट्रेन के नाम लिखे हुए होते हैं, और ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, दिस वन, ये लाइन की लेंथ है, एक्चुअली ये एवोल्यूशनरी टाइम स्पैन को शो कर रही है कि हाउ मच टाइम इट हैज टेकन। थर्मस एक्वाटिकस की थोड़ी है, इसका मतलब है ये जल्दी इवॉल्व हो गया, डिनोकोकस को ज्यादा टाइम लगा इवॉल्व होने में। इसी तरह अगर इन सब स्ट्रेन्स का हम कॉमन इंसेस्टर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन इंसेस्टर कौन सा है, ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है। तो इनमें से ये कॉमन इंसेस्टर, अब उन कॉमन इंसेस्टर से हाउ मच दे बिलोंग, हाउ मच दे इवॉल्व। और इसमें अगर देखें तो थर्मोकोकस और थर्मस एक्वाटिकस और जो डेनोकोकस है, दे आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि इन दोनों का इंसेस्टर जो है वो कॉमन है। अब अगर इसके साथ कंपेयर करें तो जो क्लोरोफ्लेक्सिस है ये थोड़ा सा डिस्टेंटली रिलेटेड है इन दोनों से। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ये थर्मस एक्वाटिकस से रिलेटेड हो तो सकता है, लेकिन ये बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड है, बहुत डिफरेंस है आ गया इसके अंदर। तो यहीं पे हमारे पास जो एसिटिनोबैक्टर हैं, हाई G+C कंटेंट एंड फिर्मिक्यूटीज, लो G+C कंटेंट, और ये जो हमारे पास फाइलम के नाम और जनरा के नाम लिखे हुए हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द बर्जीज मैनुअल। सो दिस ऑल ट्री, ये जो जितना भी एक ब्रांचेस हैं ये सारी, दिस ऑल ट्री दैट इज एक्चुअली शोइंग अस, दिस इज टर्म्ड एज अ फाइलोजेनेटिक ट्री, और ये हमारे पास जेनेटिक एवोल्यूशन शो कर रहा है फ्रॉम द इंसेस्टर टू द डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो ये हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे, या जितनी भी हमने ये पीछे टेक्निक्स पढ़ी हैं, खास तौर पे उसमें डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे या जीनोटाइपिक आइडेंटिफिकेशन के बेस पे, वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसके बेस पे हम हायरार्कल रिलेटेडनेस
और एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस जो है ऑर्गेनिजम्स की उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट। उसके अलावा हमने बहुत पहले श्रब ऑफ लाइफ पढ़ी थी, जिसमें हमने 3 लीव्स देखे थे। उसमें यूकैरिया का, आर्किया का, बैक्टीरिया का, वो बड़ी सिंपल सी थी। तो नॉर्मली दिस श्रब ऑफ लाइफ दैट इज नॉट टू सिंपल, दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप देखें इसके अंदर किस तरह से ब्रांचेस जो हैं, ये तीनों डोमेन्स की जो हमारे पास डोमेन ऑफ लाइफ हैं, दे आर इंटरमिंगल्ड विद वन एंड ईच अदर, यूकैरिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया, एंड दे हैव मिक्स्ड। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो साइनोबैक्टीरिया से एक ब्रांच जो है वो मूव करते हुए किस तरह से यूकैरिया आर्कियोटा में मिक्स हो रही है जाके, तो इट्स लाइक दैट, दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड श्रब ऑफ लाइफ, जिसमें श्रब की ब्रांचेस एक दूसरे के साथ कॉम्प्लिकेट की हुई हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इस चैप्टर का हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, वो इंशाल्लाह कल, और कल क्विज दे रहे हैं आप लोग? भाई क्विज दे रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें। वैसे अगर आप ना में कहेंगे तो क्विज तो लूंगा मैं, लेकिन स्टिल मैं सोच रहा हूँ चलें आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट दे देते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन है भाई। सर दे देते हैं। हाँ दे दें, कल क्विज दे दें, बेहतर है। और कहाँ तक देंगे? जितना आज तक पढ़ा है यहाँ तक दे देंगे? सर एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन? मिक्स लेंगे। सर ठीक है दे देते हैं, लेकिन इजी बनाइएगा ताकि हमारे नंबर भी आ जाए। अच्छा, मतलब सारे काम जो है वो जिंदगी में मैंने ही करने हैं, मैंने पढ़ाना भी अच्छा नहीं है, सर लंबा भी तो है ना। मैंने पढ़ाना भी अच्छा है, पढ़ाना भी थोड़ा है, आप लोगों को क्विज आसान भी बनाना है, चेक भी लीनियंट करना है, मिड्स भी आसान बनाने सर हैं, आपने मिड्स भी पिछली लीनियंट। बार कहा था एमसीक्यूज बहुत इजी होंगे और वो उतने ही कॉम्प्लिकेटेड थे। चलें वो तो देख लेंगे, लेकिन अब एमसीक्यूज होंगे तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड थोड़े बनाने पड़ेंगे। चलें ऐसा करेंगे, मिक्स लेते हैं, कुछ एक आध ट्रू फॉल्स ऐड कर लेंगे, कोई एक आध एमसीक्यू कर लेंगे, एक आध शॉर्ट सर क्वेश्चन बार कर लेंगे, एमसीक्यू 15-20 मिनट। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, इस बार प्लीज आप थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा ताकि हम लोग ठीक है, हाँ। एक काम कर लेते हैं, मैं क्विज इजी बना लूंगा, आप लोग मुझे वो दे दें, कोई हल्फिया इकरारनामा दे दें कि आप लोग अपना अपना करेंगे। सर आई हम डोंट अपना हैव, पेपर लिए हैं। सर, आपने आप टाइम बिल्कुल, इतना कम लिया हुआ है, आपने टाइम आप लोग बड़े चालाक हैं, उफ, मुझे नहीं अंदाजा है सर, किस आपने तरह से। टाइम इतना कम दिया हुआ है, हमने हमने उतने टाइम में अब खुद ही मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्लोट सर करता है और उतने आंसर टाइम आपने आता में है। 12 मिनट कर दिए लेंगे थे बात। सर आपने 12 मिनट दिए थे, 5 मिनट तो उसको देखते देखते ही लग गए थे। नहीं, मैं ऐसा, मुझे सर अंदाजा हुआ आपने है पता नहीं कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज दिए हुए थे, 5 मार्क्स मुश्किल से आ गए हमारे। आप प्लीज, आपने वेटेज भी 10 रखी है क्विजेस की, प्लीज आप हमें आसान दीजिएगा क्विज चलें सर। ठीक है, चलें ठीक है, तो एक तो आसान कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी सर ज़्यादा दे दूंगा। अटेंडेंस लगा दे। सर अटेंडेंस हो टाइम चुकी है बेटा। एक्सटेंड कर दें, क्विज का बहुत कम होता है सर। एलएमएस 2 से 3 मिनट तो एलएमएस में होता है, ठीक है जी, एलएमएस खुलने में लग जाता है। ठीक है, टाइम बढ़ा देते हैं और कुछ। अच्छा पहले कर देते फिर रिफ्रेश थैंक करने यू में टाइम लग सर। जाता है। मैंने कहा टाइम बढ़ा देते हैं, डोंट वरी, बढ़ा देते ओके हैं कल सर। वाले में। ओके थैंक यू सर। और सर एक्स्ट्रा क्विज लीजिएगा। चलें सही है, अगर टाइम सर बचा चेक तो करो ज़रूर आप ले लेंगे। स्लाइड्स प्लीज अपलोड कर दें। मैंने करनी थी हुई। नहीं सर। अच्छा चलें, मैं अभी अभी मेरी क्लास है फिर से एक और, उसके बाद कर देता हूँ आज ही, तो आप वहाँ से ले लें। ओके ओके गाइस, बाय बाय, विल सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। सर अटेंडेंस अटेंडेंस ले ली हुई है बच्चे मैंने, सर हमने 9:40 पे ज्वाइन किया हुआ है। बच्चे पूरे 9:40 पे। आप इसकी मैंने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, मैंने टाइम अनाउंस करके मैंने मीटिंग लॉक की थी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अटेंडेंस ना रैंडम लिया करूँ, ऑनलाइन क्लासेस में ना मुझे बड़ा फिर वो हो रहा है, बच्चे जो हैं कुछ टाइम सर पे आ आपने जाते हैं, कुछ 9:40 पे ली जल्दी। थी। सर आपने 9:40 पे ली थी, उससे ऊपर नीचे ही मैं आई हूँ। सर ले ले। सर ले ले। जी सर, यस सर सर प्लीज। प्लीज सर। यस सर। बिल्कुल नहीं, जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना सिर्फ तीन बच्चे बैठे हुए थे, दिस वाज रिडिकुलस एक्चुअली। वो बेचारे जो आगे सर लास्ट बैठे हुए चांस थे, दे। मैंने सर फिर भी लास्ट ऐसा सर मेरी लास्ट बात। क्लास में पूरी सर मैंने पूरी क्लास ली थी, अटेंडेंस के टाइम लाइट चली गई थी, बंद हो गया था, तो जब दोबारा मैंने लॉग इन किया तो सर मीटिंग एंड हो गई थी, लास्ट क्लास की भी नहीं लगी। सर ऐसा तो ना करें। आप मुझे तो नाम बता दें आपकी लास्ट क्लास वाली जो है, अगर इशू है तो मैं उसमें रिकॉर्डिंग में देख के लगा सर दूंगा, डोंट निशात से वरी। पूरी क्लास ली थी, अटेंडेंस के टाइम बस 3 नाम रह गए थे, ठीक है मेरे नाम निशात, आने पर लाइट चली गई। ठीक सर है मेरी निशात, मैं तो आपकी क्लास लास्ट टाइम क्लास वाली मार्क कर दूंगा जी।
बच्चों ये सही नहीं है होगा, आप लोग टाइम पे नहीं आते, दिस इज वेरी रिडिकुलस एंड सर मैंने सॉरी अब आपकी नेक्स्ट टाइम से नहीं 41 पे आई होंगी 40 मतलब 40 है, वो 10 मिनट का मार्जिन दिया हुआ है, मतलब एक्चुअली क्लास 9:30 पे शुरू हो रही है आप लोगों की, डोंट यू नो दैट? सर हमने अलार्म लगाया होता है तो उठते उठते 35 हो जाते हैं तो आप अलार्म जो है ना सुबह कल 9:15 का लगाइएगा। ठीक ओके है सर सर नेक्स्ट टाइम लास्ट से टाइम 15 कर का दो लगाएंगे, आज लगाते हैं। हाँ 9:15 का अलार्म लगाइएगा और फिर टाइम पे आइएगा। ओके अदीबा असलम। प्रेजेंट सर। ओके अफान तारिक राना नहीं है। आमना शहजाद, प्रेजेंट सर अनिका तबस्सुम, शी इज नॉट देयर। अनिला खान, अक्सर रुखसाना, यस सर अरीबा नासिर, फिजा नदीम, इकरा शहबाज, प्रेजेंट सर मरवा अब्बास, महरीन, ओके एंड नुमान अली, Yes, sir. ओके एंड साबिर, मोहम्मद साबिर, यस सर। मोहम्मद उजैर। सर यस सर। यस सर। उजैर तुम किधर थे, जरा तुम मुझे बताओ ना। सर मैं गांव आया हूँ, अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ सर, रास्ते में हूँ। तो क्लास ले, ध्यान से गाड़ी चला रहा तू। सर मैं अच्छा क्या तुम करूँ सर, इधर से अटेंडेंस भी है। तुम कुछ ना करो, तुम क्लास लो बस। ओके मुनज़्ज़ा शफीक, प्रेजेंट सर निशात, प्रेजेंट रबिया सर शरीफ। लास्ट क्लास के। प्रेजेंट सर ठीक है निशात, आई विल चेक इट आउट। रबिया शरीफ, राहिमा राना, प्रेजेंट सर ओके एंड उसके बाद जी सहर साजिद, सहरिश, प्रेजेंट सर। ओके एंड नहीं सहरिश तो ये थी। ओके एंड सुंदर सरूज अफशा। प्रेजेंट सर। ये आपकी पहले अटेंडेंस क्यों लगी हुई है उस टाइम पे? ओके सैयद करामत हुसैन शाह, Present, sir. उस्मान, ओके वानिया मंसूर, प्रेजेंट। गुड। जाकिरुल्लाह, जाकिर अफगानिस्तान। चलें जी ख़वातीन और हज़रात, प्लीज़ बी ऑन टाइम बाय टुमारो एंड अपने अलार्म जो है जी। सिर्फ आंता ओके ये लें अफान और अरीबा नासिर अरीबा नासिर। चलें जी अपने अलार्म जो है चेंज करके 9:15 पे करें और अटेंडेंस रैंडम हुआ करेगी जी किसी भी ओके टाइम पे। सर हाँ ओके बाय बाय, हाफिज अल्लाह हाफिज़।